Hi friends, welcome back to our channel Mentoring Minds with Ajay Sharma. I hope अब तक आप बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के कंसेप्ट को समझ चुके हैं and you are able to solve the sum on your own. I am happy to know that you have understood the concept, but still there are certain new points which we should discuss in this particular session. आज के सेशन में बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के हम कुछ एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट को समझने वाले हैं. ओके, सो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है. इस इंटरेस्टिंग वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए. एनी हाउ, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर कंसेप्ट बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट. सो टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज. अब ये बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है, सेशन के दौरान हम समझेंगे. So let's understand the new concept of bill of exchange. On, let's say, this type of sum they are going to give us in our exam. So we have to read and understand the question correctly. The title is on 31st March 2023, bank passbook of Mr. Ravi showed a credit balance of rupees 16,700. इससे हमें तीन चीजें पहले पता करनी है. हमें पता करना है कि whether it's a cash book or passbook, second it's a bank balance or an overdraft balance, and third thing is the amount. So let's see what they have given it to us. They say bank passbook of Mr. Ravi showed a credit balance. So inference is it's a passbook and it's a credit balance. Now credit balance basically it means deposit, right? So credit balance means deposits are more. Fine. So deposits are more. It means it will give us a favorable balance. Amount is 16,700. हम इसे कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के फॉर्मेट में. एट द टाइटल हेडिंग बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, द अमाउंट इज 16,700. ओके, नाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई द साइन नोटेशन. अब साइन नोटेशन हम कैसे ढूंढेंगे? हमें पता है कि here in this case cash book and passbook basically has two sides, debit and credit. They have given us bank balance as per passbook, that means credit balance as per passbook. So credit balance means positive sign. We are aware it's a favorable balance. और हमें ये भी पता है कि साइन नोटेशन के लिए we are not going to change passbook का साइन नोटेशन. So our sign notation will remain plus. Okay, so this is our starting sign notation. अब क्या करेंगे? We'll draw the working note. Okay, and in the working note our sign notation will start with plus. After plus हम alternate series लेंगे. So plus का opposite क्या होता है? Minus, plus, minus. So here we are having favorable balance as per passbook. अब क्या करना है सर? अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है और क्वेश्चन को समझना है. So let's see now. They have given us check of rupees 6,500 issued to Ratan, our supplier, but it is not yet presented for payment by him. Right? हमने चेक इशू किया रतन को. एंड हु इज रतन? रतन इज आवर सप्लायर. तो सप्लायर वो व्यक्ति होता है जो ट्रेडर बिजनेसमैन को मटेरियल प्रोवाइड करता है. राइट? जैसे हमारा मोबाइल का शोरूम है या मोबाइल का बिजनेस है, सो हमें मोबाइल कहाँ से मिलेगा? हमें सप्लायर ही देंगे ना. तो सप्लायर विल गिव रॉ मटेरियल और सप्लायर विल गिव प्रोडक्ट टू अस एंड वी विल सेल दिस प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर, ऑब्वियसली एट अ हायर प्राइस. ठीक है, सो अब हमें पेमेंट करना है सप्लायर को. सो वी हैव इशूड चेक ऑफ 6,500. फाइन. तो जब हम चेक इशू करेंगे हम इसे कहां लिखेंगे सर? कैश बुक में पेमेंट साइड पर. राइट? See, check of rupees 6,500 issued. So we are going to record it on payment side, that is 6,500. But the problem is it is not yet presented by him. हमें पता है a check is valid for 3 months. So it's a time gap. Because of time gap हमारी पासबुक से पैसा विड्रॉ नहीं हुआ, हमारे बैंक से पैसा विड्रॉ नहीं हुआ. That's why पासबुक में ये रिकॉर्ड नहीं हुआ. Fine. So difference is 6,500. Sign notation is minus. So let's see how are we going to present it here in our books. We'll write check issued but not presented 6,500. Fine. Now let's see the next one.
checks amounting to rupees 27,000 were deposited into bank for collection, out of which checks amounting to 23,000 only were credited up to 31st March 2023. क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें और ध्यान से समझें. चेक्स अमाउंटिंग टू 27,000 वर डिपॉजिटेड इनटू बैंक. हमने चेक बैंक में डिपॉजिट किए. ऑब्वियसली डिपॉजिट करने से पहले हम उसे कहां लिखेंगे? कैश बुक में. सो विल रिकॉर्ड इट इन कैश बुक 27,000. अब यहां पे क्या कहा गया? आउट ऑफ विच चेक्स अमाउंटिंग टू 23,000 ओनली वर क्रेडिटेड. 23,000 वर क्रेडिटेड. क्रेडिट का मतलब डिपॉजिट. सो ओनली 23,000 के चेक क्रेडिट हुए. सर यानी द रिमेनिंग डिफरेंस ऑफ 4,000 इज नॉट येट क्रेडिटेड. साइन नोटेशन, जिसकी लाठी उसकी भैंस, राइट? सो 27,000 बड़ा है, सो प्लस 4,000 वी विल राइट. लेट्स सी, विल राइट हियर चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड 4,000. कितना इजी है ना? लेट्स सी. ऐसे ही हमें क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से समझना है. जितना हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, लिखेंगे, उतना दिमाग में याद रहेगा. रिमेंबर स्टूडेंट्स, खाली देखने से काम नहीं चलेगा, हमें इसे लिखना भी होगा. प्रिपरेशन, और प्रिपरेशन के लिए खूब जबरदस्त प्रिपरेशन होनी चाहिए. मेहनत ऐसी करो, दिन रात मेहनत करो, ठीक है, कि वो सफलता अपने आप सामने आकर के हमारा कदम चूमे. लेकिन उसके लिए हमें मेहनत करनी होगी, है ना? लेट्स सी. नेक्स्ट वन नाउ. चेक्स ऑफ rupees 40,500 were issued on 25th March 2023, of which only one check of 1,500 were presented for payment on 30th March. क्या कहना चाह रहे हैं ये? 40,500 का चेक इशू किया, हमने चेक इशू किया. तो जब हम चेक इशू करेंगे कहां लिखेंगे? सर हम समझ रहे हैं, हम इसे पेमेंट साइड में लिखेंगे, ठीक है. अब एक ही चेक, ओनली वन चेक ऑफ 1,500 वॉज प्रेजेंटेड, कहां लिखोगे? कहां लिखोगे? यस, विल राइट इट इन पासबुक विड्रॉ साइड. तो डिफरेंस कितने का है? सर डिफरेंस 39,000 का है और नेट इफेक्ट आ जाएगा माइनस. ओके, सो माइनस 39,000 हमें करना होगा. देन ओनली विल बी एबल टू गेट करेक्ट बैलेंस. फाइन. तो कैसे लिखेंगे हम यहां पर भी? सेम, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड ऑफ 39,000, राइट? सो अब हमें समझ में आया कि बेसिकली क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है और पढ़ करके समझना है, ठीक है. सो लेट्स सी द नेक्स्ट वन. बिल रिसीवेबल ऑफ rupees 11,700 which was discounted with the bank was dishonored on 30th March 2023. The intimation was received on 5th April. अब सर ये कंसेप्ट है क्या? बिल्स रिसीवेबल है क्या? So here let us understand the concept of bill of exchange. अब bill of exchange होता क्या है बेसिकली? ना देखो, हम एक सेलर हैं और जनरली सेलर मार्केट में प्रोडक्ट बेचता है. जब एक प्रोडक्ट रेगुलरली मार्केट में बिकता है, सो कस्टमर्स हमारे यहां पर आकर के कनेक्ट होते हैं. समटाइम्स एज अ सेलर हम एक होलसेलर होते हैं एंड वी आर गोइंग टू सेल आवर प्रोडक्ट टू रिटेलर्स. नाउ समटाइम्स रिटेलर्स आर नॉट हैविंग मनी, so we may sell goods on credit to the customer. सर इसका मतलब हम कभी कभी जब रिटेलर्स को प्रोडक्ट बेचते हैं तो उधार में प्रोडक्ट बेचते हैं, और जब उधार में प्रोडक्ट बेचते हैं तो सबसे ज्यादा रिस्क एक सेलर को होता है. सर क्या रिस्क है? देयर आर टू इंपॉर्टेंट रिस्क एसोसिएटेड विद क्रेडिट सेल्स. फर्स्ट वन इज नो पेमेंट एंड सेकेंड वन इज डिलेड पेमेंट. या तो पेमेंट मिलेगा ही नहीं और या तो डिले होकर के मिलेगा. इसीलिए कहते हैं ना, आज नकद कल उधार, नहीं किया तो बंटाधार, बराबर. सो हमें क्या करना है? व्हाट इज बिल ऑफ एक्सचेंज का कंसेप्ट हियर? सिंस हियर द सेलर इज सेलिंग गुड्स टू बायर,
हमें एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट, दैट मीन्स द इंस्ट्रूमेंट विच इज प्रोवाइडेड बाय द लॉ अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, दैट इज बिल ऑफ एक्सचेंज, उसका सहारा लेना चाहिए. नाउ व्हाट इज दिस? लेट्स से दैट सेलर इज रवि and Suraj is the buyer. Seller has sold goods to buyer. Ravi has sold goods to Suraj. अब इस ट्रांजैक्शन में कैश नहीं दिया गया. रवि कहता है कि भैया देखो मेरे पास, सूरज कहता है कि मेरे पास देखो पैसे नहीं हैं, जैसे ही पैसे आएंगे मैं तुम्हें दे दूंगा. हमने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं चलेगा, आपको लिख करके देना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज आप आगे चल के मुकर जाओ तो. अच्छा अच्छा ठीक है. तो सूरज ने बिल के ऊपर साइन कर दिया और साइन करके वो ओरिजिनल बिल हमें हाथ में वापस लौटा दिया. सो दिस बिल जो हमने ड्रॉ किया था, राइट, वी बिकेम ड्रॉयर एंड सूरज बिकेम ड्रॉई, राइट. तो जो बिल ड्रॉ करता है उसे ड्रॉयर कहा जाता है और जो बिल एक्सेप्ट करता है उसे ड्रॉई कहते हैं. फाइन. अब ये बिल हमारे पास यानी रवि के पास है. समटाइम्स रवि और द सेलर इज इन नीड ऑफ मनी. तो अब वो क्या करेंगे? ऑब्वियसली इन्हें पैसे की जरूरत है और मार्केट में अब पैसे वो मांगे तो किससे मांगे? पैसे तो उनको मिलने वाले हैं सूरज से, लेकिन प्रॉब्लम इज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सूरज विल नॉट मेक पेमेंट बिकॉज उसने क्रेडिट पीरियड लिया है 2 मंथ्स का, तो हमें 2 मंथ्स तक तो वेट करना पड़ेगा. ऐसे में वी कैन टेक द हेल्प ऑफ आवर बैंकिंग सिस्टम. यानी क्या कर सकते हैं? रवि कैन अप्रोच बैंक, कि बैंक से रिक्वेस्ट करेंगे, बैंक प्लीज एक काम करो, आप ये बिल ले लो और बदले में आप मुझे कैश दे दो. बैंक सेज ओके ठीक है, हम ये बिल क्रॉस चेक करके ले लेते हैं कि वेदर ये बिल ऑथेंटिकेट है या नहीं. बैंक ने सूरज को फोन किया, फोन करके इंटीमेट किया इस तरह से बिल है, एंड सूरज हैज एक्सेप्टेड कि यस द बिल इज जेन्युइन वन. फाइन. द बिल इज ऑथेंटिकेट, द बिल इज जेन्युइन बिल एंड बैंक हैज गिवन मनी टू अस. ठीक है, हमारे पास पैसे आ गए, बिल चला गया बैंक के पास. कौन वेट करेगा 2 महीने तक? बताओ. ऑब्वियसली बैंक विल वेट. एंड आफ्टर 2 मंथ्स कौन जाएगा सूरज के पास पेमेंट लेने के लिए? सर ऑब्वियसली बैंक विल गो. ठीक है. सो इन दिस केस बैंक विल अप्रोच आफ्टर 2 मंथ्स टू सूरज और बैंक कहेगी कि भैया पैसे दे दो, जो ये बिल के ऊपर तुमने साइन किया है तो पैसे दे दो. सूरज रिफ्यूजेस टू मेक पेमेंट. वो बोल रहा है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है. दिस रिजल्ट्स इनटू डिसऑनर. इसे कहते हैं डिसऑनर ऑफ बिल, यानी डिसऑनरिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज. अब ऐसे केस में बैंक क्या करेगी? बैंक ने तो पैसे किसको दिए थे? रवि को, राइट. सो बैंक इन दिस केस विल डिडक्ट द अमाउंट फ्रॉम रवि's अकाउंट, राइट, बिकॉज बैंक को तो पैसे चाहिए, या तो सूरज दे या तो रवि दे. तो सूरज ने पैसे नहीं दिए, तो नाउ बैंक विल विड्रॉ द अमाउंट फ्रॉम रवि's अकाउंट. तो ऐसा ही कुछ यहां पर हुआ है. सर व्हाट इज इट? लेट्स अंडरस्टैंड नाउ. बिल रिसीवेबल ऑफ 11,700, ये 11,700 रुपए का बिल था और हमने बैंक को डिस्काउंट किया था. डिस्काउंट मीन्स वी हैव गिवन द बिल टू द बैंक और बदले में पैसा ले लिया. इट वॉज डिसऑनर्ड. ठीक है, अब ये डिसऑनर हो गया तो बैंक हमारे अकाउंट से पैसे डिडक्ट कर लेगी, पैसे काट लेगी, राइट. ऑब्वियसली बैंक हमें इंफॉर्म करेगी कि इस तरह से पैसे डिडक्ट हुए हैं, लेकिन इंटीमेशन हमें 5 अप्रैल को मिला. ऑब्वियसली बैंक हमें एक लेटर भेजती है और 5 तारीख को वो लेटर हमें रिसीव हुआ है. तो यहां पर ट्रांजैक्शन हुआ क्या? हियर इन दिस केस बैंक हैज डिडक्टेड द अमाउंट. So in passbook 11,700 is already deducted. Since we did not receive intimation, right? हमने यहाँ पेमेंट की कोई एंट्री लिखी नहीं, and that's why the difference in balance has come. Net effect is plus 11,700. I hope you understood the concept of bill of exchange. ये काफी important concept है and most of the student they find it difficult to understand. I've tried my level best to make you understand with the help of simple PPT. ठीक है. Let's see the next one, the last one. Insurance premium rupees 14,400 paid by bank appeared twice in cash book.
अगेन इट्स अ ह्यूमन एरर, जहां पर हमने एक बार नहीं 2 बार अमाउंट लिख दिया। कभी कभी ऐसा होता है, चाय बनाने के समय 1 चम्मच के बजाय 2 चम्मच चीनी चली जाती है ना। कभी कभी दाल में भी नमक ज्यादा पड़ जाता है, ठीक है, ऐसा होता है, ह्यूमन एरर। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक। अब बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, तो ऑब्वियसली इट विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक और पासबुक। ऑब्वियसली पासबुक सर। सो पेमेंट साइड पर यानी विड्रॉ साइड पर 14,400 वाज रिकॉर्डेड, बट इट अपीयर्ड ट्वाइस इन कैश बुक। हमने गलती से 2 बार डबल डबल 14,400 का डबल 28,800 हमने डबल लिख दिया। ओके, ह्यूमन एरर पॉसिबल। डिफरेंस निकालेंगे, द डिफरेंस विल बी सेम 14,400, बिगर वैल्यू इज 28,000, so minus 14,400. Great. So now recorded twice in cash book 14,400. I hope you understood the concept. Now let's do the last step. We'll do the total and find out the balance. So here in this case, the total amount to be added is 15,700. We'll add up 16,700 plus 15,700 as 32,400. Okay. How much amount that we have to subtract it? We have to subtract 59,900. आप ऑब्जर्व करो ध्यान से, यहां पर 32,000 इज द स्मॉलर अमाउंट while 59,000 इज द बिगर अमाउंट, है ना। 32,000 छोटा है और 59,000 इज बिगर। सो इन दिस केस हमें जो आंसर मिलेगा वो नेगेटिव बैलेंस है। इफ यू ऑब्जर्व हियर, नेगेटिव तो हम लिखते नहीं है, सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू? 32,000 minus 59 is 27,500. यहां पर बैंक बैलेंस दिया है, but the problem is here there is negative balance, so we have to write compulsorily overdraft balance as per cash book. याद रहे, अकाउंटेंसी में हम नेगेटिव का इस्तेमाल नहीं करेंगे। so what we are going to do? We are just going to write the opposite of balance. अगर यहां बैंक बैलेंस दिया है तो यहां आ जाएगा ओवरड्राफ्ट बैलेंस, एंड इफ दे हैव गिवन ओवरड्राफ्ट बैलेंस टू अस, यहां पर आ जाएगा बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक. So I hope you understood the concept regarding how to present this particular sum. So I hope in today's session you understood most important concept of bank reconciliation statement. हमने ये समझा कि किस तरह से overdraft balance affect हो सकता है whenever a negative balance comes. See to it that you are practicing sums regularly, you are writing it in your book, you are maintaining a book. हम आपको असाइनमेंट प्रोवाइड करेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप वो असाइनमेंट डाउनलोड कीजिए और उसे सॉल्व कीजिए. बाय देन, तब तक के लिए बाय बाय.